Hello everyone, welcome to Maths Verse. I am Mansi and in today's video we'll start chapter 3, pair of linear equation in two variables. So we'll understand the basic concept and solve questions step by step. So let's get started. So in this video we'll be covering topics like general forms of linear equations, types of pair of linear equation and methods of solving pairs of linear equations. So let's start with the first linear equation in two variables. So let's first see the general form of linear equation in two variables, which is ax plus by plus c, where a and b are the coefficients, x and y are the variables and c is constant. Pair of linear equation in two variables. For example, 2x plus 4y plus 1 is equal to 0 and 6x plus y plus 3 is equal to 0. This is the example of pair of linear equation in two variables. Now let's see the general form of linear equation two variable, which is a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Let's move on to the types of pairs of linear equations. So we have three types of lines: parallel lines, intersecting lines and coinciding lines. If parallel lines means these are the parallel lines. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not is equal to c1 upon c2, then the lines are parallel. Intersecting lines means two lines meet at a point. If a1 upon a2 is not is equals to b1 upon b2, then we say lines are intersecting. And coinciding lines means a line whose all points are same. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then we say lines are coinciding. Parallel lines are inconsistent equation. Parallel lines are inconsistent equation, and intersecting lines and coinciding lines are consisting equations. So let's see some examples related to types of pairs of linear equations. For example, in first exercise, question number 2, we have this question in which we have to tell whether the pair of lines are intersecting, parallel or coincide. तो यहाँ पे 5/7 and 4/6. So a1 upon a2 is not is equal to b1 upon b2, right? So it is intersecting lines. Here 9/18 which is 1/2 is equal to 3/6 which is 1/2 and 12/24 which is 1/2. So here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So these are coinciding lines. And here 6/2 which is 3 minus 3/-1 which is again 3, 10/9 which is not 3. So here comes this a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but is not is equal to c1 upon c2. The third part is parallel lines and inconsistence equation. Now the next topic comes the method of solving pair of linear equations. So यहाँ पे in this topic हमें pair of linear equation in two variables given होती है, means two equations given होती है जिनके अंदर two variables होते हैं और हमें उसको solve करना होता है to find the value of the two variable. For example, this is the pair of linear equation in two variables, so we have to solve this two equations to find the value of x and y. So there are many methods to solve the equation.
सो इन दिस चैप्टर हम ग्राफिकल मेथड करेंगे एंड एल्जेब्रिकल. दो टाइप के मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड्स एंड एल्जेब्रिकल मेथड्स. और एल्जेब्रिक मेथड्स में वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करेंगे. सो द फर्स्ट मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड. सो इन ग्राफिकल मेथड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन. ठीक है, किसी भी लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है, राइट. तो हम जो भी हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनको ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड जब हम उनको ग्राफ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन हमारा मिलेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ठीक है, सो लेट्स सी योर बुक एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करते हैं. इट सेज 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सबसे पहले हमें बोला है कि 10 स्टूडेंट्स है क्लास 10 में. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है ना. लेट x be number of girls and let y be number of boys. तो x plus y is equal to 10. ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन में हमें बोला है कि नंबर ऑफ़ गर्ल इज़ 4 मोर दैन नंबर ऑफ़ बॉयज़. नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स विच इज़ x इज़ इक्वल टू y प्लस 4. y इज़ नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 जो है ज़्यादा है. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x इज़ इक्वल्स टू y प्लस 4 विच इज़ x माइनस y इज़ इक्वल टू 4. ये दो इक्वेशन हमें मिल गई है. तो अब हम इनका ग्राफ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं और इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं x y. तो अगर मैं इसको 2 रखती हूँ तो ये 8 आ जाएगा. अगर मैं इसको 4 रखते हैं तो ये 6 आ जाएगा. तो ये आ गए इस लाइन के इक्वेशंस. एंड x माइनस y इज़ इक्वल्स टू 4 के सॉल्यूशंस आर if we put x is equal to 6, so y is 2. If we put x is equals to 4, then y is 0. And if we put x is equals to 8, then y is equals to 4. तो ये हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं दोनों इक्वेशन के. अब हम इनका ग्राफ जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेट्स कंस्ट्रक्ट द ग्राफ. तो x2 and y8 which comes here, x4 and y6, x2, x6 and y4. This is the equation number 1. Equation number 1 which is x plus y is equal to 10. Then next is x minus y is equal to 4. So x 6, y 2, x 4, y 0, x 8, y 4. These are the solutions of equation number 2. These यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस जो हैं वो प्लॉट कर दिया है. नाउ दिस इज़ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट विच इज़ x7 and y3. 7, 3. So the solution of this
क्वेश्चन इज़ कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो x थी, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 7 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है वो y थे, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल्स टू 3. So this is the graphical method. In graphical method फर्स्ट आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया होगा, फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन किया तो पहले दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन पहले बनेंगी, उसके बाद उन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे एंड उसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे. उसके बाद एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही आपका जो है आंसर हो जाएगा. दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई. और हमने x किसको लिया था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को, y किसको लिया था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को. ओके, सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. फोर्थ क्वेश्चन एंड फर्स्ट एक्सरसाइज विच सेज कि हमें सॉल्यूशन निकालने हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर वो कंसिस्टेंट हुए तब. कंसिस्टेंट मतलब अगर उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे तब. ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस दे रखी होंगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस टाइप के सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और यू कैन से कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग है. तो हमें सबसे पहले ये चेक करना, अगर पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन, तब तो फिर हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो सॉल्यूशन हम किन किन केसेस में निकालेंगे, अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जब वो कंसिस्टेंट होगी मतलब उनका जो है सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा. या तो इंटरसेक्टिंग होगी, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या फिर कोइंसाइडिंग होगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट है 1/1 माइनस, और ये आ जाएगा 1/-1. तो यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू b1/b2. तो ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. a1/a2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू b1/b2. तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी. दिस इज़ वेरी इजी. जैसा हमने ये किया है, हम ये दो इक्वेशंस हैं, इनका ग्राफ जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वही जो है इन सॉल्यूशन का, इन दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन हो जाएगा. ओके, जैसे ये है 2/3 माइनस 2/3. तो यहाँ पे भी ये मैच नहीं कर रहे, a1/a2 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू b1/b2. ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी. पहले यू हैव टू शो ऐसे कि a1 इज़ इक्वल टू 2, a2 इज़ इक्वल टू 3, b1 इज़ इक्वल्स टू 2, b2 is equals to -3, and a1/a2 is not is equals to b1/b2. Therefore solution of these lines are consistent and pair of equations are इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, देन आपको सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करना है कि इन दोनों के सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. फिर सिंस इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ऐसे ये एक पॉइंट पे जो है मीट करेगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. थर्ड 2/2 विच इज़ 1 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू, अगेन ये यहाँ पे आ जाएगा -1/2. तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी. नाउ दिस 4/4 1 एंड 1/2. तो ये सारी जो हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सारे सॉल्यूशन जो हैं कंसिस्टेंट होंगे, सारे जो है इंटरसेक्टिंग होंगे. तो सबके सॉल्यूशंस जो है आपको ऐसे करके निकालने हैं. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0. तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें एक इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है सो दैट जो सेकंड इक्वेशन हो वो फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, सेकंड पैरेलल लाइंस हो, थर्ड कोइंसाइडिंग लाइंस हो. ठीक है,
तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस देखते हैं. एक इक्वेशन मेरे को गिवन है, मेरे को सेकंड इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट जो दोनों मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग हो जाए. इंटरसेक्टिंग कब होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस जब a1/a2 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस ये 1/2 हो जाएगा. यहाँ पे 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 6 के अलावा कुछ भी हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बट 6 ना हो. माइनस यहाँ पे तो हम कुछ भी लिख देंगे इज इक्वल टू 1. तो दिस इज़ the another equation such that these two lines are intersecting lines. Now एक और लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3x, अब ये 2/3 हो गया. अब यहाँ पे 2/3 नहीं होना चाहिए बस. तो यहाँ पे तो 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2/3 इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू 1. तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए इंटरसेक्टिंग. ठीक है. सेकंड देखते हैं पैरेलल. पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इज़ इक्वल टू c1/c2, राइट. तो मेरे को एक ऐसी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंस्ट्रक्ट करनी है सो दैट ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल हो. तो पहली तो मेरे को a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 लेना है. तो मैं 2 से इसको इंटू करूँ तो ये 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा. तो a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 यहाँ तक हो गया. अब ये यहाँ पे मेरे को -16 के अलावा, क्योंकि -16 लिखूँगी तो -8/- 16 इज़ 1/2. तो -16 के अलावा मैं कुछ भी लिखूँ तो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल. ओके. -16 के अलावा आई कैन राइट एनीथिंग सो दैट मेरी ये जो दोनों इक्वेशंस है ये पैरेलल हो गई. थर्ड हमें बनानी है कोइंसिडेंट लाइन. ठीक है. कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जब a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2 हो. ठीक है. तो सिंपली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो या 3 कर दो या 4 कर दो. सिंपली लाइक फॉर एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस पूरी इक्वेशन को. तो इट विल बी 6x प्लस 9y माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0. So this is, these two lines are coincident lines. So with this now हमारा graphical method and ग्राफिकल मेथड सबको समझ आ गया होगा. हमारे पास 2 लाइंस होती हैं, उसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना है. कंस्ट्रक्ट तभी करोगे, सबसे पहले चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है. सबसे पहले चेक करना है. अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आपको बोला होगा कि कंस्ट्रक्ट करो, तो हमेशा वो इंटरसेक्टिंग ही होगी. ठीक है. तो विद दिस वी आर डन विद द ग्राफिकल मेथड. अब हम चलेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड पे, फिर एलिमिनेटिंग, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके. सो अब हम सॉल्व करेंगे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को विद एल्जेब्राइक मेथड्स. एंड एल्जेब्राइक मेथड्स हैज़ 3 मेथड्स जो हमारे कोर्स में हैं. उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड. सो लेट्स अंडरस्टैंड सब्सटीट्यूशन मेथड विद द एग्जाम्पल. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट ले लेते हैं, विच इज़ 3x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज़ इक्वल्स टू 9. तो सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन उठाते हैं, एक इक्वेशन उठाएंगे, उसमें से जो है x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ 3 + y/3. यूजिंग दिस इक्वेशन जो कि मेरे को गिवन है, मैंने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, इस x की वैल्यू को सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूँगी. एंड इसको सब्सटीट्यूट करूँगी मैं, फर्स्ट से मैंने वैल्यू निकाली और उसको मैं सेकंड में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो इस मेथड को बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड. तब मैं क्या करूँगी, सेकंड इक्वेशन जो मेरे को गिवन है उसमें x की वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं.
3 plus y upon 3 minus 3y is equals to 9. This and this will get cancelled. So here comes 9 plus 3y minus 3y. तो यहाँ पे 3y माइनस 3y गॉट कैंसिल एंड हमारे पास आ जाएगा 9 इज़ इक्वल्स टू 9 विच इज़ ट्रू. तो दिस मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इन दोनों इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं. ओके, कोई एक सॉल्यूशन जो है वो नहीं है. और फिर हमें पूछा है कि सॉल्यूशन बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? या तो हम x की जगह, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 3 निकाली है ना हमने, तो 3 प्लस वाई अपॉन 3 कॉमा वाई, ये हमने सॉल्यूशन दे दिया इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, और आई कैन गिव सॉल्यूशंस इन टर्म ऑफ x ऑल्सो. x की जगह मैं x लिख दूँ एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 3. तो या तो ये सॉल्यूशन होगा, ये इन टर्म्स ऑफ y है, ये इन टर्म्स ऑफ x है. तो आप कोई भी करेंगे, बोथ आर करेक्ट. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे आपका 9 इज़ इक्वल टू 9 आ गया विच इज़ ट्रू. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. कुछ क्वेश्चंस में आएगा जहाँ पे ये इक्वल टू नहीं होगा, लाइक -4 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ फॉल्स. तो वहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. मीन्स लाइंस आर पैरेलल और उनका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा. ओके, और दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो सिंगल सॉल्यूशन जिन लाइंस का होता है, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, वहाँ पे डायरेक्ट. अब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस का देखते हैं. अभी हमने देख लिया है कोइंसाइडिंग लाइंस का. सो हम ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट देखते हैं, विच इज़ 0.2x प्लस 0.3y इज़ इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज़ इक्वल्स टू 2.3. अब हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं इसको पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर 13 and 4x plus 5y is equals to 23. Now I will solve it. 2x plus 3y is equals to 13 से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ विच इज़ 13 माइनस 3y बाई 2 एंड इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन इज़ 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23. 4x 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 23. फिर 2 आ गया, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 23. तो 26 माइनस y इज़ इक्वल्स टू 23. तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आएगी 3. तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे. 13 माइनस 6/2 विच इज़ 7/2. तो यहाँ से हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है. तो देयरफॉर यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन निकला है. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो ये जो थी ये कोइंसाइडिंग लाइंस का एग्जाम्पल था, ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है. अब हम एक पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल देते हैं. इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पे ही आ जाएगा आपका -4 इज़ इक्वल टू 0. मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये फॉल्स हो जाएगा. सिंस ये फॉल्स हो जाएगा फिर आप लिखोगे कि हेंस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लाइंस आर पैरेलल. फॉर एग्जाम्पल इन here your example number 7, यहाँ पे दो इक्वेशंस दे रखी है. x प्लस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके हमने x की वैल्यू निकाली. फिर वो x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन में जो है पुट कर दी. तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ गया -4 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स. तो देयरफॉर इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सोल्यूशन. तो these are
parallel lines, they have no solution. So with this we have done with the substitution method. And let's look at the second question. इसमें क्या है, इसमें आपको दो इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है. तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे और आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है. एक आएगा ना 2 माइनस 3/4, 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू -3/4, राइट. तो A1/A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू B1/B2. तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का आप सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओगे तो एक सोल्यूशन जो है वो आएगा. तो उस सॉल्यूशन को इसमें पुट कर देना है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देना है, x की जगह x की वैल्यू पुट कर देना, फिर आपकी m की जो है वैल्यू आ जाएगी. और बाकी सारे क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं कि सबसे पहले दो इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करो और फिर वही ये सब आएगा. अगर ट्रू स्टेटमेंट आ गई तो इनफाइनाइटली मैनी, अगर फॉल्स स्टेटमेंट आ गई तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. और एक सॉल्यूशन होगा तो ऐसे एक सॉल्यूशन जो है आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद एलिमिनेशन मेथड. सो इन सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उसको सब्सटीट्यूट करते थे दूसरी इक्वेशन में. हेंस मेथड का नाम होता था सब्सटीट्यूशन मेथड. और एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे. एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी विद वन वेरिएबल, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो हमें पेयर ऑफ इक्वेशन दी है 2x + 3y इज़ इक्वल टू 8 एंड 4x + 6y इज़ इक्वल टू 7. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम इन इक्वेशंस में से इन इक्वेशंस को, किसी भी एक इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें सो दैट हमारा जो कोएफिशिएंट है एक वेरिएबल का वो सेम हो जाए, ठीक है. फिर हम उसको माइनस करके या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, राइट. तो मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये 4x और यहाँ पे 4x आ जाएगा. अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 4x + 6y इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, राइट. अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4x आ गया. तो फिर इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम आ गए, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था. तो अब मेरी इक्वेशंस जो है वो बन गई ये, एंड ये एज इट इज़ सेकेंड इक्वेशन. फिर हम इक्वेशंस को करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो ये प्लस का 4x है तो ये माइनस हो जाएगा, ये +6 है तो माइनस हो जाएगा, ये +7 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9. 0 इज़ इक्वल टू 9, फॉल्स. द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस. Let's take one more example. Let's take this example exercise question, which is 3x + 4y is equal to 10 and 2x - 2y is equals to 2. तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो y वाले कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन जो है वो हो जाएगी 4x - 4y इज़ इक्वल्स टू 4. फिर हम इसको ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ये हो जाएगा 7x, ये एडिशन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज़ इक्वल्स टू 14. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2. और फिर हम किसी भी एक इक्वेशन में 2x - 2y इज़ इक्वल्स टू 2 था, तो इसमें x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 4 - 2y इज़ इक्वल्स टू 2. यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1. तो यहाँ से x आ गया 2, y आ गया 1. तो ऐसे करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड.
एलिमिनेशन, तो ऐसे करना है हमें एलिमिनेशन मेथड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हमें दो पहले इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। इफ़ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to this if we add 1 what k। ओके, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x ले लेंगे, डिनोमिनेटर को y ले लेंगे। ठीक है, तो हमें बोला है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, fraction reduces to 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर में, एंड इट बिकम्स 1/2। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके दोनों का निकाल लेंगे। सेकंड इक्वेशन है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be। तो हम नूरी की एज को ले लेते हैं x एंड सोनू की एज को ले लेते हैं y। तो हमें बोला है 5 years ago, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी की एज हो जाएगी x-5 एंड सोनू की एज हो जाएगी y-5। तो ये 5 साल पहले की एज आ गई। फिर है कि नूरी वॉज 3 times as old as सोनू। तो ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड बोला है 10 years later, 10 years later में नूरी की एज हो जाएगी ये और सोनू की एज हो जाएगी इतनी। ये जो हमने लिए हैं ये प्रेजेंट एजेस है x एंड y। 10 years later ये एज बन जाएगी। फिर हमें बोला 10 years later नूरी विल बी twice as old as सोनू। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ऐसे ही हमें इक्वेशंस जो हैं कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर उसके एलिमिनेशन मेथड बनाकर हमें एलिमिनेशन मेथड या फिर जो भी बोला होगा वो लगाना है। फोर्थ है मीनू went to a bank and withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 rupee note and 100 rupee note only. मीनू got 25 notes in all। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 वाले जो नोट्स हैं, नंबर ऑफ़ 50 नोट्स को x ले लेंगे, नंबर ऑफ़ 100 नोट्स को y ले लेंगे। तो टोटल नोट्स 25 है, तो x + y = 25। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एंड टोटल जो है वो 2000 है। 50 के नोट्स 50x + 100y = 2000। टोटल जो पैसे हैं वो 2000 है। तो ऐसे ये दो इक्वेशन बन गई। एंड विद दिस हमने एलिमिनेशन मेथड कर लिया है इस वीडियो में कवर, जिसमें हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया है। यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन में क्या था, हमने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर हमने ग्राफिकल मेथड किया एंड एलिमिनेशन मेथड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है। तो ये 3 मेथड्स हैं एंड वी आर डन विद दी चैप्टर।